Welcome to Sanjeevani Education Group. Sanjeevani Education Group is a IIT NEET coaching hub which is renowned for producing the rankers in different competitive exams from national level 11th and 12th JEE NEET, Standard 10 NTSC MTSC, 6th and 9 Dr. Homi Bhabha Bal Vaidyanik exam, 5th and 8th scholarship exam, 7th Olympiads along with IIT NEET Foundation for all classes. We have experienced faculty who focus on the academic development of students. So dear parents, hurry up. For admission, visit Sanjeevani Education Group, plot number 13, Aditya Nagar, Gadkhera, Aurangabad, or call 95112 70135 or 95112 66680. Welcome dear students, welcome to Sanjeevani Education Group. So in the last lecture students, we have started one point, that is the motion. We have started one topic and the name of that topic is motion. And we have seen so much points about the speed, about the velocity and number of things we have seen. Okay. So in the today's lecture, we are going to study the one thing, that is what is acceleration. What is acceleration? So acceleration is rate of change of velocity. Rate of change of velocity is nothing but the acceleration. What is acceleration? Rate of change of velocity. Okay. So what is the rate of change of velocity? Suppose let's take one example. Suppose initial velocity is v1, final velocity is v2. Initial velocity is v1, final velocity is v2. So change in velocity, change in final minus initial, and this change is denoted by symbol delta. What is delta? Delta means change. What is delta? Delta means change. Acceleration is given by formula change in velocity upon time. Change in velocity divided by time is nothing but the acceleration. Remember this formula delta. This is the delta. Delta means change. What is the delta? Delta means change. Okay. Now let's see. Suppose v2 minus v1 upon t. This is also one of the formula for acceleration. Acceleration का यूनिट क्या होगा? उसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. हाउ सर? वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड. टाइम का यूनिट क्या होगा? सेकेंड. तो ये क्या बन गया? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एंड यस, दिस इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन. वन इज द पॉजिटिव एक्सेलरेशन, अनदर इज द नेगेटिव एक्सेलरेशन. When a velocity of any body is increased, we call it as a positive acceleration. And when the velocity of that object decreases, we call it as a negative acceleration. How so? Let's see. Suppose positive acceleration. If velocity of a body increase is known as positive acceleration. Okay. If velocity of a body decrease, it called as negative acceleration. ये शॉर्ट फॉर्म है एक्सेलरेशन का. इमेजिन कीजिए अगर आप घर से निकले क्लास जाने के लिए, संजीवनी एजुकेशन ग्रुप जाने के लिए, जैसे आप धीरे धीरे मेन रोड पे आते हो, आपकी स्पीड बढ़ती है. जैसी स्पीड बढ़ गई, इमेजिन करिए इनिशियल वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड और 2 सेकेंड के बाद वही वेलोसिटी हो गई 50 मीटर पर सेकेंड. तो आपकी वेलोसिटी बढ़ी या कम हो गई? बढ़ गई. तो उसे ही हम लोग कहेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन. जैसे आपको सामने क्लास दिख गया, आप क्या करते? वेलोसिटी और बढ़ाते क्या? नहीं, आप क्या करते? ब्रेक मारते, यानी कि यू आर डिक्रीजिंग द वेलोसिटी. तो जैसे ही वेलोसिटी कम हो गई, तो फाइनल वेलोसिटी कम हो गई इनिशियल से, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? नेगेटिव एक्सेलरेशन. समझ में आया? सो व्हेनेवर वेलोसिटी इंक्रीजेस, positive acceleration. Whenever velocity decreases, negative acceleration. And we also call it as a retardation. We also call it as a retardation. हम लोग इसे और क्या कह सकते हैं? रिटार्डेशन कह सकते हैं. समझ में आया? ओके. तो चलिए आज तक जितना भी पढ़ा उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स.
तो ये पूरा नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके। देखिए, एक तो पहली कंडीशन, आपको पहले ये कन्वर्जन आना चाहिए, किलोमीटर पर आर का कन्वर्जन मीटर पर सेकेंड में कैसे करें। इफ वेलोसिटी इज गिवन इन किलोमीटर पर आर and you have to convert that velocity in meter per second, how to convert, and to understand this you have to understand, suppose multiply by 5/18, ये आपको याद होना चाहिए। एग्जाम्पल 36 किलोमीटर पर आर यानी कि कितने मीटर पर सेकेंड। इफ यू हैव टू कन्वर्ट, टेक इट, नोट कर लीजिए, इफ यू हैव टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आर इंटू मीटर पर सेकेंड, if you have to convert kilometer per hour into meter per second, multiply by 5/18, like this, 36 into 5 divided by 18, 18 1 za, 18 2 za, we get 10 meter per second, we get 10 meter per second. Very simple conversion. One more example, 72 kilometer per hour, how many meter per second? 72 into 5/18, 18 1 za, 18 4 za, we get 20 meter per second, we get 20 meter per second. So if you have to convert kilometer per hour into meter per second, just simply multiply by 5/18 and you will get the answer. Okay, good. So let's think about the questions, how to solve the questions of speed and acceleration and number of things. Okay, कभी कभी एक चीज आपको पूछी जाती है कि एवरेज स्पीड फाइंड कीजिए। एवरेज स्पीड कैसे फाइंड करें, हाउ टू फाइंड दैट एवरेज स्पीड, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ व्हाट इज एवरेज स्पीड, लेट्स सी। उसके पहले एक एक्सेलरेशन का क्वेश्चन। दिस इज अ कार, ये कार तो नहीं दिख रही है, टेम्पो हो गया, ठीक है। दिस इज द वही कार, चलो दो कार, एक कार पहले यहां पे थी अब यहां पे गई। इनिशियल वेलोसिटी इसकी v1 थी 10 मीटर पर सेकेंड एंड फाइनल वेलोसिटी हो गई 40, ये गया 4 सेकेंड में। कितने सेकेंड में? 4 सेकेंड में। एक्सेलरेशन कितना होगा? वेरी सिंपल, इफ वी हैव वन कार moving with the initial velocity 10 meter per second and final velocity is 40 meter per second in time 4 second, find the acceleration। तो चलिए ट्राई कीजिए। आई नो यू ऑल आर वेरी टैलेंटेड एंड यू आर एबल टू डू दिस। कितना है आंसर? यस, गुड, ओके। A is equals to change by time, V2 40 10 by 4, यानी कि here is the 30 upon 4 and this is the answer। Yeah, we also called as a 15 divided by 2, yeah, 7.5 meter per second square। Very simple question, very simple question। Final minus initial upon t। Okay, one more, suppose initial velocity 40, final velocity 10, time is 4, what is acceleration? V2 minus V1 upon t, na? What is V2? 10, V1 40, time is 4, minus 30 by 4 means minus 7.5. See the difference, here is plus 7.5 and here is minus 7.5. How, sir? Why such things happen? We call this as a positive acceleration and this as a negative acceleration। See, यहाँ पे v1 10 था, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती गई हमारा जो आंसर है वो पॉजिटिव आ गया। लेकिन यहाँ पे पहली वेलोसिटी 40 थी, लेकिन जैसे टाइम बीतता गया वेलोसिटी कम होती गई। सो वेलोसिटी इफ स्टार्ट डिक्रीजिंग इट्स नेगेटिव। बस वही चीज याद रखिए, अगर आप बाइक पे जा रहे हो, अगर वेलोसिटी कम हो गई तो सीधा बोलने क्या, यार ये तो नेगेटिव एक्सेलरेशन हो गई। जैसे आप वेलोसिटी बढ़ाते गए, भीड़ बाईपास रोड पे आ गए, आप प्लेन रोड पे, वेलोसिटी इंक्रीज एक्सेलरेशन, वेलोसिटी डिक्रीज रिटार्डेशन, वेलोसिटी डिक्रीज रिटार्डेशन। समझ में? ओके, यस। सो प्लीज टेक दिस क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हाँ, कभी कभी क्वेश्चंस विल बी लाइक दिस। सी, सपोज initial velocity 10 meter per second, final velocity 10 meter per second, time 2 second, what is acceleration? V2 minus V1 upon t, V2 10, V1 10, time 2, 10 minus 10 0 by 2, acceleration कितना आ गया? 0। सर अब ये क्या हो गया ना? ठीक है सर, पहले तो पॉजिटिव बोले, ठीक है हमने सुन लिया,
नेगेटिव बोले वो भी सुन ले। ये जीरो क्या क्या है अभी? ऐसा एक भी लेक्चर नहीं जाता जहां पे हमारा चौक नहीं गिरता। ठीक है चलिए। हाँ यस, मैंने क्या बोला था, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन इज चेंज इन वेलोसिटी स्टूडेंट्स, इट्स अ चेंज इन वेलोसिटी, वी वांट चेंज इन वेलोसिटी। यहाँ पे वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, यहाँ पे वेलोसिटी तो कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन कितना आएगा? जीरो। तो चलिए नोट डाउन कीजिए, वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट। If velocity is constant, then acceleration is zero. If velocity is constant, then acceleration is zero. One more beautiful example. So let's consider V1 is 36 kilometer per hour. And suppose here is the V2. V2 is 30 meter per second, and the time is given as the 4 second. Find the acceleration. अब आप डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर पाओगे क्या सर 30 minus 36? No. Why? The V1 is given in kilometer per hour and V2 is given in meter per second. We want all the units in the same system. Same system में चाहिए, तो कैसे? अभी मैंने कहा था सर किलोमीटर पर आर का कन्वर्जन मीटर पर सेकेंड में कैसे करें? कोई दिक्कत नहीं भाई, मल्टीप्लाई बाय 5/18, 36 इंटू 5/18, 18 1 जा 18 2 जा 10, कितना है 10, 30 minus 10 upon 4, 5. Very simple. Okay. So yes, this type of questions will be normally very important for your foundation purpose. Now एक एवरेज स्पीड का क्वेश्चन करेंगे. आई होप यू विल एंजॉय दैट. ओके, थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन रहेगा. सपोज अ पर्सन कवर्स डिस्टेंस A to B to C. A to B distance is D. B to C distance is D. Okay. A to B जाने के लिए टाइम लगा T1, यहाँ पे टाइम लगा T2. स्पीड होगी S1, स्पीड होगी S2. उन्होंने बोला फाइंड एवरेज स्पीड. क्वेश्चन को जनरलाइज करो. 3 कंडीशन है. कार निकली A से B तक गई, स्पीड S1 से, टाइम कितना लगा T1, डिस्टेंस उतना ही है, डिस्टेंस नहीं बदला. ओके. B to C स्पीड कितनी थी S2, टाइम कितना लगा T2. हमें फाइंड करना है एवरेज स्पीड. तो बच्चों एवरेज स्पीड का फॉर्मूला याद रखिए. एवरेज स्पीड इज गिवन बाय फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस मीन्स D1 plus D2 and total time means T1 plus T2. Am I right? Okay. Now distance is D, here is also D, but time is different ना. अरे भाई देखो A to B डिस्टेंस D था, B to C भी डिस्टेंस D plus D. Okay, like that. तो ये बन गया 2D डिवाइडेड बाय T1 plus T2. ध्यान दीजिए, अभी ये टाइम तो डिफरेंट है, स्पीड भी तो डिफरेंट है. तो अगर हमने ये फॉर्मूला लिखा स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम, तो S1 D by T1 एंड S2 इज इक्वल टू D by T2. एनी प्रॉब्लम? यहां से यहां तक इतनी स्पीड, यहां से यहां तक इतनी स्पीड. ओके, हमें चाहिए टाइम. तो टाइम कैसे निकालें? तो हम टाइम निकालेंगे T1 इज इक्वल टू D by S1 एंड T2 इज इक्वल टू D by S2. ये डिवाइडेशन में था, यहां पे गया मल्टीप्लिकेशन में, तो ये नीचे आ गया, इसको इधर भेजा, इसको नीचे लाया, तो T1 T2 मिल गया. ओके, तो 2D अपॉन D by S1 D by S2. तो ये दोनों में से कॉमन कौन दिख रहा है आपको? D. चलो D को कॉमन निकाल लेते हैं. D को अगर हमने कॉमन निकाला तो 1 by S1 1 by S2 D गेट कैंसल. 2 अपॉन 1 by S1 प्लस 1 by S2. तो चलिए इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये S2 यहां पे गए, S1 यहां पे गए, डिवाइडेड बाय S1 S2. ठीक है. अब बच्चों इस साल आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स करना पड़ेगा. लास्ट साल तो ठीक है सर ऐसा ऐसा, लेकिन इस साल हमें बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने. यस आई नो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा आपको, लेकिन आपको अगर इंजीनियर अगर डॉक्टर बनना है तो ये फाउंडेशन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा. ठीक है. तो ये S1 S2 जाएगा ऊपर, तो 2S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2, दिस इज द फाइनल एवरेज स्पीड. ये क्या आ गई हमारी एवरेज स्पीड. तो समझ में आया? ओके. पहले हमने क्या किया, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. तो टाइम स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम इधर गया, स्पीड इधर गया, इस तरह से मिला, दोनों को ऐड कर दिया, D को कॉमन निकाला, D कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, आंसर मिल गया. ओके. तो चलिए क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए.
if a car moves from A to B, if a car moves from A to B, covers a distance of 40 kilometer, covers a distance of 40 kilometer, and from B to C also covers a distance of 40 kilometer, and from B to C also covers a distance of 40 kilometer. Initial speed is 20 meter per second. Initial speed is 20 meter per second. And final speed is 10 meter per second. And final speed is 10 meter per second. Find its average speed. Find its average speed. Find its average speed. Okay. So this question is homework for you. सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ी सी लेवल बढ़ा के देखेंगे. तो चलिए इस साल थोड़ा सा न्यूमेरिकल भी फिजिक्स के एंजॉय करते हैं. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.